شکر بنتا سب کچھ جو ہماری جو پلین لینڈ سے کھیل کو ابھی وہی جو اس کی برج پہ وہ پانی واپس کی طرف جا رہا ہے اس کو ہم زیادہ ڈیپ کر رہے ہیں اس حساب سے کہ جتنا پانی ہو سکے ہمارا وہ منچور کی طرف چلا جائے. اچھا یہ تو ہوگی رائٹ سائڈ سے. اچھا لیفٹ سائڈ پہ ہمارے صورت یہ لیفٹ سائڈ جیسے کھیرپور ڈسٹرکٹ ہے عمر پور ڈسٹرکٹ ہے یا نوشہر ڈسٹرکٹ کا وہاں پر کوئی آلریڈی نہیں تھا ہمارا. تو الٹیمیٹلی ہم نے وہ سارا پانی بیسیکلی جب ہمارے پاس ڈرینیج نیٹ ورک نہیں ہے تو ہم جائیں گے اریگیشن نیٹ ورک کی طرف کہ اس کو وہاں پر ڈائیورٹ کریں پانی کو جیسے ڈائیورٹ کریں گے تو یہ نہ ہو کہ ہم ایک ایریا جو آلریڈی انلینڈیڈ ہے اور دوسری ایریا کو ہم زیادہ فلڈنگ کرتے ہیں. ہم نے وہ ڈیزرٹ میں بھی اسی طرح کی ڈرینس بنائی ہے کھیرپور آتا شاہ میں عمر کوٹ میں نوشہر لیفٹ سائڈ پہ کہ جتنا وہ پانی ہم نے وہ سارا ڈائیورٹ کی رسی سے اور اس حساب سے کہ پانی جو ہے وہ ڈیزرٹ میں چلا جائے. ڈیزرٹ میں ایک صورت حال یہ تھی جو انیشلی ہماری لیکس تھی وہ بھی شدھ پانی تھی کیونکہ بٹن تھا پانی رین فال کا بہت زیادہ تھا. الٹیمیٹلی ہم نے تقریباً 4 سے 5 سے 6 کلومیٹر تک 50 سے 60 فٹ کی ہائٹ پہ ڈیوز تھی اس کو کاٹ کے ہم نے وہ ڈرینس پہ ٹیرس بنائی. الٹیمیٹلی ہم نے لیکس ہمارے پاس فکس ہمارے پاس اویلیبل تھی وہاں پر ہم نے پانی. سر یہ ساری صورتیں ہیں ہماری. لیفٹ بینک میں تقریباً ہمارا ابھی 33,000 ایکڑ میں پانی ہے. رائٹ سائڈ پہ ہمارا 1,22,000 ٹوٹل پانی ہے. ہم سمجھتے ہیں. اچھا دوسری بات سر یہ ہے امپورٹنٹ جو ہمارے پاس کہ اب پانی آئسولیٹڈ پاکٹس میں ایک تو پورشن یہ دھاتوں کا یہ ہے جو سپریو بند اور ایک کے بیچ میں وہ تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا نکل جائے گا. اور جو آئسولیٹڈ پاکٹ ہے چاروں طرف ہماری اریگیشن کی ہوگی کیونکہ ہمیں بھی وہ تاکہ گھر سے بیٹ پر خراب ہماری ہو تو ہم نے وہ کینال بھی ہم نے چلانا تھا. ہم نے وہ بھی الٹیمیٹ جب کینال ہمارے چلتے ہیں تو الٹیمیٹ جو سب سے واٹر ہے وہ بھی یہ ریز ہوگا. تو یہ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کینال کولر میں جو جنوری میں کینال کولر آئے گی ہماری اس میں اور زیادہ ریڈکشن ہے کہ جو تھوڑا بہت پانی لیفٹ بینک میں ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور رائٹ بینک والا بھی سر پرسنٹیج سر اگر اوورآل ہم دیکھیں گے پرسنٹیج تو 95% ہم نے سارا پانی ہمارا نکل گیا ہے. اور تقریباً اگر 94% ہمارا رائٹ بینک پہ اور 95.7% لیفٹ بینک پہ ہم نے پانی شکر الحمد للہ ایویکوٹ کر دیا لیفٹ ہماری کو. یہ ڈسٹرکٹ وائز ہے سر. اگر ہم دیہوں کو دیکھیں گے تو ہماری جو ٹوٹل ڈے تھی سر ہماری جو افیکٹڈ تھی 3,357 ڈیز تھی. اب پارشلی سر اس میں 529 ڈیز ہماری یہ ٹوٹل ڈیز سے ہمارے اس میں یہ صورت حال ہماری بنی ہے. اگر ہم اس کو بینک کو دیکھیں گے تو یہ ساری رائٹ بینک ہماری ساری لیفٹ بینک ساری انلینڈ ہے. یہ آج کا میچ ہے. یہ 31 اگست کا میچ تھا. یہ آج کا میچ. دادو کا اگر ہم دیکھیں گے دادو میں کچھ ایراز اگر آپ آئے ہوں گے تو کچھ واٹر باڈیز آپ دہلی سے نظر آئیں گے. یہ بیسکلی نیچرل واٹر باڈیز ہے. یہ 2020 کا امیج ہے ہمارا. یہ 2021 کا امیج ہے سر. یہ ہے ہمارا لیٹسٹ امیج. یہ تھا 31 اگست والا امیج. یہ آج کا امیج. اگر اس کو ہم دیکھیں گے تو یہ ساری آپ یہ صورت حال یہاں پر 4 لاکھ پہ ایکڑ میں پانی پہلے تھا اور 52,000 پہ ایکڑ میں پانی ہمارا ہے. پر واٹر باڈی نیچرل اس ٹائم پہ بھی 2020 میں بھی اب وہی واٹر باڈی ہے جو آپ نے دیکھی. اب پانی تھوڑا آئسولیٹڈ ہو گیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کلوئر بھی یہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ نکل جائے گا. کلوئر 6 کو سر 6 سے 15 تک پر وہ 21 تک ہو جاتا ہے سر. سر بھائی ہے میرے سر ہم سے جو ٹریجڈی ہے سر MN بھی ٹرین ہے یا خیر جو وابڈا کے ہاتھ میں جو 4 سال سے عمران خان کی حکومت ہے 1 روپیہ نہیں رکھا. 1 روپیہ نہ رکھنے کی وجہ سے اس بند پہ کوئی کام نہیں ہوا. کام نہ ہونے کی وجہ سے جو ہنڈرنس ہے MN بھی ٹرین میں پانی ہمارے خیر ناتن شاہ میئر میں اوور ٹاپ کرتا ہے. یہاں ان کا بند ہے یہاں خیر ناتن شاہ میئر ہے اوور ٹاپ کر کے سر. ہم 2023 میں اگر ایسا بارش آئے تو پھر ڈوبیں گے سر. اس کا سر کوئی بچاؤ کر کے ہمارے لیے کوئی سر کوئی ایسے اقدامات کرے. کیپیسٹی ہے کوئی 4,3500 اس میں پانی آئے نا. اور سر وہ کاری موری جو ہے نا وہ مین ہنڈرنس ہے ہمارے تیرا خیر ناتن شاہ کو ڈبونے میں سر. میں نے صحیح کو بتایا صحیح 1-2 دفعہ بتایا صحیح. اس وقت ڈیمیج ہوئی ہے پانی کی وجہ سے. ایک وابڈا والوں نے اسٹرکچر بنایا تھا جوئی کو پانی دینے کے لیے. جب وابڈا نے MNV بنائی تھی تو اس وقت بلڈنگ تھا انہوں نے پانی اس وہی کالی موری جو MNV نے بنائی تھی وہ ڈیمیج ہوئی ہے اس فلڈ کے اندر. اس وجہ سے جوہی کے
कोलैप्स हो गई है, ये ऑल्टरनेट अरेंजमेंट जो पानी पहुंचा रहे हैं आगे, अगर इस पानी नहीं जाता दे हैव टू रिपेयर इट। आई डोंट थिंक वो नहीं सर, अभी उसमें करेंगे जब फ्लड रिसीड होगा तो पानी काली बोली हम दोबारा बनाएंगे सर। बहुत बड़ा काम है क्योंकि वो स्ट्रक्चर पूरा एक ओवरहेड ब्रिज की तरह बना हुआ है जो पानी लेकर उस तरह चलता है। तो सर ये पानी जोई तक पहुँचता ही तब सखर बैराज का जब वो MNV के ऊपर जो ब्रिज डली हुई वो डैमेज हुई। क्रॉसिंग की जो ही ब्रांच है MNV को क्रॉस करने के लिए कैको डैम है वो पूरा कोलैप्स कर गया। पूरी साइड हमारी इरिगेशन से चली हुई है, ऑलरेडी डन कल्टिवेशन, लेकिन इन्होंने MNV को यूज़ करके पानी पंप करके पंपिंग हम दे रहे हैं, चल रहे हैं। आंखों पंपिंग चल रही है हमारे वो ट्रैक्टर माउंटेड पंप लगा के पानी दे रहे हैं, जिस तरह लोगों ने गंदम लगाई उनको कुछ रिलीफ दे सकें। सर रिलीफ एफर्ट्स के बारे से सर एक और रिक्वेस्ट सर, जब तक ये MNV बंद जो है सिंध गवर्नमेंट इसको बंद डिक्लेयर नहीं करेगी हम डूबते रहेंगे। अच्छा, ये वापडा के कंट्रोल में है सर, उसकी वजह से हम सर MNV के लिए कंसल्टेंट हायर किया है कि उसको प्रपोज करें कि उसकी कैपेसिटी कितनी इनहांस करें। तो सर बलूचिस्तान का एस्टिमेशन जो बलूचिस्तान से पानी आया है सर, उसकी एस्टिमेशन हम कर रहे हैं। बलूचिस्तान ने जो हमें फिगर दिया है सर वो लाखों फीसद का दिया है। मिसाल तौर उनकी नाड़ी रिवर है, कभी भी वो 1 लाख फीसद से ज़्यादा नहीं आई हिस्टोरिकली। इस वक्त 2,20,000 फीसद नाड़ी रिवर लेके आई है। एक मुला रिवर है जो कुजदार से आती है, वो कभी 70-80 हज़ार फीसद से ऊपर नहीं आई, इस वक्त 1,90,000 फीसद लेके आई है। जो ब्रिटिश इराके से उनके ब्रिजेस पड़े हुए थे वो कोलैप्स कर गए, इसलिए बलूचिस्तान को अब गए तो वो पानी सरासर 10 सर एक सजेशन है, 2010 में फ्लड आया था, पेड़ को भी नुकसान हुआ था, केन शाह को नुकसान हुआ था। हमारा इंडस साहब ज़्यादा CM साहब को मैंने रिक्वेस्ट की है, 31 किलोमीटर है राजवहाँ से लेकर अपना जोई बराज, ये अगर राइज हो जाएगा 10 फीट तक इंडस साहब में तो हमारी दोनों तहसील बन जाएगी। बेसिकली सर ये चेयरमैन साहब ये सजेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि इंशा मेयर ये हमारे ये हमने सारी फैसिलिटी बनाई है कि हमारे ऊपर हो जाए रेस। किलोमीटर इसको अगर रेस कर देंगे तो एज अ बंद तो आपके बड़े शहर एटलीस्ट बच जाएंगे, हम बच सकते हैं। हाँ सर, इंडिया साहब भी टुवार्ड्स लाड़काना क्लियर होगा, चलती रहेगी और हमारे शहर में बच जाएंगे सर। 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर है फयाज साहब करेक्ट विनते कम छड़ने दवा के कैंसर और मेयर बच जाएगा आपकी इस पे नजर साड़ी सर हमारा जो इस बार जो सिंध गवर्नमेंट है ना LS बंद काफ़ी उस पर काम हुआ था, उस साइड से हमें बिल्कुल थ्रेट नहीं थी और MNV जो है उसकी हालत बहुत ख़राब थी। CM साहब आए, उन्होंने देखी, फिर CM साहब ने हमें कहा कि आप इस पर मशीनरी हायर करके उसकी हालत क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन रेंज की वजह से उसमें बड़े बड़े ढारे पड़ गए थे। वापडा एंड कम्प्लीटली इग्नोर्ड दैट MNV, शायद साई ने भी आपको यही बताई है। तो CM साहब ने हमें कहा कि जो अभी इनका वजीर है वापडा का वो आया भी था। जी सर, हमने उनको ये बात कही, प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, उनको भी हमने यहाँ पे बताया था। वो हमारे जो रेलवे स्टेशन वो आए थे, साहब आए थे। MNV की कैपेसिटी है 3500 की सर, 3500 में अगर आप 10 लाख की हमारा कैपेसिटी था उसको हमें देखना पड़ेगा ना, उस लेवल पे ये सारे कैपेसिटी हाँ सर, अगर इस पर जो बात कर रहे हैं दो चीज़ें, एक तो MNV की कैपेसिटी बढ़ानी कितनी बढ़ाएं, दूसरा जो बात की है कि अगर MNV को एज अ प्रोटेक्शन लाइन यूज़ करें बंद बनाएं, उस पर कुछ जोई वाले शायद परेशान होंगे बिकॉज फिर वो बहुत डूबेंगे। ये जो बेहतर है सर, आप 100 टाइम्स भी बढ़ा दें कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, वो कैपेसिटी तब वो पॉसिबल नहीं इतने बड़े फ्लड पे, बट प्रोटेक्शन अगर आप उसको बंद जैसे कह रहे हैं कि किसी भी गाड़ी में बैठना, चेयरमैन साहब गाड़ी में बैठकर आगे पानी में के बाद एक और पानी में उतरेंगे, तो वो PTV का कैमरामैन होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? खैरियत से हो? आपसे बहुत शुक्रिया, इतना देर बाद हम फिर से मिल रहे हैं।
मैं एक्चुअली ख़ास तौर पे आज यहाँ आया हूँ ताकि हम पूरा पाकिस्तान को एक पैगाम भेज सके, लेकिन पूरी दुनिया को पैगाम भेज सके कि आज तक हमारे जो सैलाब मुतासरीन हैं वो मुश्किल में हैं। आज तक ख़ास तौर यहाँ का दादू का और इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासर हैं, और ऐसे ना हो कि हमारे अपने भी और दूसरे जो है वो भूल जाए कि हम कितना मुश्किल में। आप सबसे ज़्यादा जानते हो कि ये जो मानसून आया था, ये जो सैलाब था, वो कितना तारीख़ी था। मैं तो दुनिया भर में जो है ये एक एग्ज़ाम्पल बन चुका है। यूनाइटेड नेशंस से लेके जनरल असेंबली जो न्यूयॉर्क में हुआ, और फिर शर्म अल शेख में जो COP27 का कॉन्फ्रेंस हुआ, वहाँ पूरी दुनिया कह रही है कि जो पाकिस्तान के साथ हुआ, 1/3 अपना उनका ज़मीन पानी में डूब गया, सैलाब में डूब गया। 33 million flood affectees, climate refugees, 16 million children affected, 600,000 pregnant women affected. एक इस किस्म का जो कुदरती आफत है, इस साइज़ का दुनिया ने अभी तक देखा नहीं है। आप कोई और मुल्क, किसी और मुल्क के पास ये एग्ज़ाम्पल नहीं है कि उनका 1/3 जो सरज़मीन है वो पानी के नीचे डूबा हुआ हो। ये हमारे लिए, जिन्होंने 2010 का सैलाब देखा, जिन्होंने इतने सारे तारीख़ में से भरे हुए हैं हमारे मानसून और सैलाब, हमने कभी इस किस्म का कैटास्ट्रफी को नहीं भुगता। हम तो समझते हैं ये क़यामत से पहले एक क़यामत था हमारे लिए। हम हज़रत नूह के जो कहानी है उसके बारे में हमने पढ़ा तो है, लेकिन ऐसे महसूस हो रहा था कि हम अपनी ज़िंदगी में इस किस्म की कुदरती आफत से गुज़र रहे थे। और मसला ये है कि आज भी कुछ इलाके बलूचिस्तान और सिंध के पानी से अभी तक मुतासर हैं, अभी तक पानी मौजूद है और बड़ा साइज़ का पानी मौजूद है। जहाँ से पानी निकल चुका है वहाँ तबाही ही तबाही है। Millions of houses destroyed, 5 million acres of standing crop, खरा फसल जो जब बारिश हो रहा था उस सीज़न का, उसका नुकसान इतना लंबा अरसे के लिए, इसलिए इतना तबाही और इतना ज़्यादा पानी निकलने की, जो किसान था वो तो अपना फसल नहीं लगा सका, जो मज़दूर था उनके लिए कोई मज़दूरी नहीं। जो जितना वसाइल है और जितना मसला है उसमें इतना फुकदान है कि अभी हमने मिलकर एक मुसलसल एफर्ट करना है कि एक हम वो वसाइल जमा करें ताकि हम पाकिस्तान को और अपने लोगों को इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। एहसास है, जानते हैं कि लोग इतना मुश्किल में हैं और जो काम हमने करना है वो एकदम से नहीं होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला चलेगा। लेकिन उम्मीद ये है, नियत ये है, हमारा जो प्लान है, हमारा जो मकसद है कि जो हर एक सैलाब मुतासरीन है, जब हमारा प्रोग्राम रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए मुकम्मल हो जाए, तो हम उन लोगों को जो सैलाब से मुतासिर हुए उनको इस पोजीशन में ले आना चाहते हैं कि वो कह सके कि हमारा मदद करने के बाद, हमारा घर बनाने के बाद, हमारा सरज़मीन का उनको अपना ज़मीन का मालिक बनाने के बाद, उनको अपना एग्रीकल्चर इनपुट्स में मदद देने के बाद, उनका जो डेवलपमेंट के मंसूबे हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम अब होना पड़ेगा, ये सब काम करने के बाद कि हम उनको अपने पैरों पे खड़े करेंगे मुआशी तौर पे इंशाअल्लाह ताला। जब ये सिलसिला, जो थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें ये सिलसिला पूरा करने में,
لیکن جب ہم یہ سلسلہ پورا کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ان کا معاشی حالت جو ہے وہ سیلاب آنے سے پہلے جو ان کا معاشی طاقت تھا اس سے بھی بہتر ہوگا. یہ ہمارا عزم ہے, یہ ہمارا مشن ہے انشاءاللہ تعالی. اور میں نے گری خدا بخش پہ بھی کہا اور آپ کے سامنے ایک بار پھر دہراتا ہوں کہ پورے ملک میں مسئلے ہیں. ہم نے یہ کام نہ صرف سندھ میں مگر گلگت بلتستان میں, جنوبی پختونخوا میں, جنوبی پنجاب میں, بلوچستان میں اور سندھ میں سیلاب متاثرین کو مدد کرنا ہے, ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کروانا ہے. مگر ہم خوش نصیب ہے کہ ہمارا چیف منسٹر نے انتظار نہیں کیا اور جیسے یہ مانسون کا سلسلہ چل رہا تھا اسی وقت چیف منسٹر سندھ صاحب نے مجھے جو ورلڈ بینک کا ڈائریکٹر ہے پاکستان کا اور جو ورلڈ بینک کا ڈائریکٹر ہے افغانستان کا, ان کے ادھر کوئی مسائل تھے, ان سے ملوایا. وہاں جیسے ہم اگست کے بیچ میں تھے اور ابھی تک پانی کا جو مانسون ہے وہ رکا نہیں تھا, اس وقت سے چیف منسٹر سندھ صاحب نے اپنا ٹیم کو کہا کہ جو گھر بنانے کا پروگرام ہے, جو اریگیشن کے پروگرامز ہیں, جو کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کا پروگرامز ہے, جو غربت اور مہنگائی کا مقابلے کرنے کا پروگرامز ہے, جو غریب ترین لوگوں کو مدد کرنے کا پروگرامز ہے, آپ اس پہ کام شروع کریں. اور یہ کام جلدی شروع ہونے کی وجہ سے شکر الحمدللہ جب میں پچھلے بار امریکہ پہنچا تو ہم یہ سارے پروگرامز ورلڈ بینک کے بورڈ سے اپروو کروائیں اور 1.7 بلین ڈالرز تقریباً $2 ارب کا جو قرض ہے سندھ حکومت کی طرف سے ورلڈ بینک سے لیا جا رہا ہے تاکہ ہم جہاں تک گھروں کا سلسلہ ہے, جس کا بھی گھر کو نقصان ہوا ہو اور اس کا پورا سروے جو سارے وفاقی ادارے ہیں اور لوکل ادارے ہیں اور یونائٹڈ نیشنز کے ادارے ہیں انہوں نے ملک بھر میں سروے کیا ہے, جہاں جیو لوکیشن بھی موجود ہے, جہاں ان گھروں کا جو حالت تھا سیلاب کے بعد وہ تصویریں بھی موجود ہیں, اور ان کی ڈیٹا کے مطابق, ان کے میرٹ کے مطابق ہم انشاءاللہ تعالی ہر متاثر خاندان کو ایک سٹائپن دیں گے تاکہ وہ سٹائپن کے ساتھ اپنا گھر کو بنا سکیں. ہم اس کے اوپر ان کو ایک بلا سود قرض دیں گے تاکہ اگر وہ مزید کام کرنا چاہیں اپنا گھر کو بنانے کے لیے وہ بھی ان کو فائدہ ملے. لیکن اس پروگرام کا جو خوبی ہے, جو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کا اپنا ایک نظریہ کے مطابق اور منشور کے مطابق ہے, وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں لوگوں کے گھر کو نقصان ہوا ہے, اگر ان کے گھر صوبائی حکومت کی زمین پہ ہے یا وفاقی حکومت کی زمین پہ ہے اور وہ نسلوں سے اس زمین پہ رہ رہے ہیں مگر وہ اپنے سرزمین کے مالک نہیں ہیں, ہمارا اسی پروگرام کے ساتھ ساتھ جہاں سٹائپن دیا جا رہا ہے, جہاں قرض دیا جا رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم سیلاب متاثرین کو اپنے سرزمین کے مالک بنائیں گے تاکہ پھر وہ زمین جو صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت کا کوئی کام کا نہیں ہے اور وہ اگر اس کے پاس ہو یا نہ ہو وہ نسلوں میں انہی زمین پہ رہیں گے, لیکن اگر ہم ان کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو ایک دم سے ہم اس خاندان کو, اس فیملی کو ایک اثاثہ دیں گے. اس اثاثہ کی وجہ سے ان کا جو معاشی قوت ہے اس میں اضافہ ہوگا. اگر وہ چاہتے ہیں تو وہ اثاثہ وہ رکھ کے آنے والے نسل کو دے سکتے ہیں اور اس کا قیمت میں اضافہ ہوگا اور اس سلسلے کے تھرو ان کو یقین ہوگا کہ ان کے جو آنے والے نسلیں ہیں ان کے پاس زیادہ اثاثے ہوں گے ایز اپوز ٹو دیئر پیرنٹس. اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے اس اب ایسٹ جو اب ان کے نام پہ ہیں, ان کا گھر یا ان کا زمین بن چکا ہے, اگر اس کو کولیٹرل کے طور پہ استعمال کر کے اگر وہ قرض لینا چاہے, کوئی کاروبار شروع کرنا چاہے یا مزید اپنا زراعت میں کام کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی دس ول اوپن اپ ایکسیس ٹو کیپٹل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ تعالی
अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि ये सिलसिला अफसोस के साथ टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे ये सिलसिला शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला सिंध के लिए, और फिर उम्मीद है कि यही जो टेम्पलेट है ये बलूचिस्तान भी अपनाएगा, ये जनूबी पंजाब भी अपनाएगा, ये हम तो चाहते हैं कि पख्तूनख्वा भी ये सिलसिला अपनाए, ताकि हम अपने लोगों के लिए इस कैटास्ट्रफी को एक मौका में तब्दील करके उनको इस किस्म का फ़ायदा पहुंचाया जाए। फिर जो हमारा फोकस है वो हमारा जो कम्युनिकेशन और इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे हमें मालूम है कि बहुत से मुश्किलात है इस डोमेन में, और उससे जब भी सैलाब आता है या मानसून का सिलसिला होता है तो हम चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम एक ऐसा निज़ाम बने जिसके लिए हम ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो कि अगर खुदा ना खास्ता इस किस्म की कुदरती आफत एक बार फिर आए तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा चाहे वो बंड्स हो, चाहे हमारा कनाल्स हो, चाहे वो हमारा ड्रेन्स हो, वो ऐसे बना हुआ हो कि वो हमें एक किस्म का तहफ़्फ़ुज़ दे सके। मैं एम्फसाइज करना चाहूँगा कि ये किस किस्म का स्ट्रैटेजी है, किस किस्म का स्केल क्या है। हर शोबे में एक क्राइसिस बन चुका है इस सैलाब के बाद। एक तो ज़राअत का आप सबको पता है, बहुत इस पे बात हो चुका है। बेघर जितने लोग हो चुके हैं वो एक हाउसिंग क्राइसिस बन चुका है। जिस रफ्तार से, जिस तादाद में लोग गुर्बत के लकीर के नीचे धकेले गए हैं, ये भी एक मुआशी क्राइसिस बन चुका है, ख़ास तौर पे उन ख़ानदानों के लिए, मगर पूरा पाकिस्तान के लिए इसका एक मुआशी असर होगा। जो सेहत के शोबे में एक क्राइसिस बन चुका है वो क्यों? एक तो जो पानी से बीमारियां फैलते हैं उनमें तो इजाफा ही इजाफा हुआ है, मगर साथ साथ जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उन इलाकों में जहां ये सैलाब इतना स्ट्रेंथ के साथ आया, वो वहाँ हमारा जो सेहत का इंफ्रास्ट्रक्चर पे नुकसान हो चुका है। ये एक तालीम का क्राइसिस है। इसलिए सूबा सिंध, मैं सिर्फ सूबा सिंध की बात करूँ, अब बाकी मुल्क में भी आपका तालीमी इदारे को नुकसान हुआ है, लेकिन सूबा सिंध में जो 50% हमारा तालीमी इदारे हैं वो या डैमेज्ड है या कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड है, और ये वही जो 50% हमारे तालीमी इदारे हैं उनमें हमारे बच्चे 50% सिंध के स्कूल गोइंग चिल्ड्रन उन 50% जो तालीमी इदारे हैं उनमें जाते हैं, उनका तालीम पे असर हुआ है। ये एक कॉम्पाउंडिंग क्राइसिस है, और जितना मुआशी तौर पे नुकसान होगा, जितना मुआशी हालात बिगड़ेंगे, उतना एक लॉ एंड ऑर्डर का ख़तरा बनेगा। तो हम चाहते हैं कि जितना संगीन ये क्राइसिस है उतना संजीदगी के साथ हमारा वफाकी हुकूमत तो अपनी जगह, सूबाई हुकूमतें तो अपनी जगह, लेकिन हमारे मुखालिफ भी इसको उतने संजीदगी के साथ लिया जाए। याद रखें कि जब कोविड का पैंडेमिक शुरू हुआ था तो हम भी ऑपोजिशन में थे और हम भी बहुत तपे हुए थे कि आपने अवाम के वोट पे डाका डाल के एक सिलेक्टेड को मुल्क पे मुसल्लत करवाया। हमने तो PDM तकरीबन उसी वक्त बनाया था और हमारा कैंपेन का जो सिलसिला था उसी वक्त शुरू होना था, लेकिन जब मुल्क मुश्किल में था, जब एक इस किस्म का कुदरती नेचुरल डिज़ास्टर, तो क्या कहें, हेल्थ का डिज़ास्टर बन चुका था, तो हमने वो सारी चीज़ें भूल के कौम से मुखातिब हुए, वज़ीर आज़म से मुखातिब हुए, कहा कि आप पहले सिलेक्टेड कहते थे, तो हमने कहा अब आप इन हालात में जब मुल्क मुश्किल में है, आप वज़ीर आज़म हो, आप कदम बढ़ाएं। अब जब हमारे ऊपर इतना बड़ा जो तारीख में किसी ने नहीं देखा कुदरती आफत आया, तो बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा हूँ कि जनूबी पंजाब, जनूबी पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, सूबा सिंध और बलूचिस्तान डूबा हुआ था, और हमारा सियासी मुखालिफ हमें मदद नहीं तो हमारे अवाम को मदद करने के बजाय वो अपने सियासी लड़ाई को
पॉज तक नहीं कर सके, रुक नहीं सके। वो अपना लॉन्ग मार्च का सिलसिले चलते रहे, जीटी रोड का सियासत चलता रहा, और बहुत बुरा लगा मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी कि ये किस किस्म का कौम है कि जब इतना बड़ा कुदरती आफत हो वो इंसानियत को सियासत से ज़्यादा जो है स्पेस नहीं दिया जाता है। आज भी मैं समझता हूँ कि जिस स्केल का ये क्राइसिस है, जिस स्केल का तबाही है, हमारा नेशनल कॉन्शियस में उसका उतना स्पेस नहीं दिया जा रहा है। मगर हम इंशाअल्लाह ताला डबल मेहनत करेंगे। वसाइल कम हैं और इसलिए मैं माजरत करता हूँ कि टाइम लगेगा हमारा इस मिशन को मुकम्मल करने में। लेकिन मैं ये अब मेरा एक किस्म का एक मकसद, एक मिशन, एक ज़हन इस पे बन चुका है कि इंशाअल्लाह ताला हम ऐसे अपने लोगों को लावारिस नहीं छोड़ेंगे, और हम इंश्योर करेंगे कि जितना भी टाइम लगे हम दुनिया भर में जो भी मदद इकट्ठा कर सकते हैं वो भी इकट्ठा करेंगे। जितना फाइनेंसिंग जमा हो सकता है हम अभी से करेंगे, और इमीडिएटली ये काम जो है वो हम शुरू करेंगे, और साथ साथ फाइनेंसिंग का हम बंदोबस्त करते रहेंगे। जनवरी 9 को हमने वज़ीर आज़म साहब का और यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल, अक़वाम मुत्तहिदा का जो सेक्रेटरी जनरल है, उनके साथ एक बैलर अक़वामी इंटरनेशनल जो है क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं, जिसमें जो वफाकी हुकूमत ने मनसूबेबंदी किया है, जो सूबाई हुकूमत ने मनसूबाबंदी किया है, वो दुनिया के सामने हम पेश करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला वो हमारा इस क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान का जो रोड शो है वो उस दिन से शुरू होगा, मुकम्मल नहीं, वो हमारा इब्तिदा होगा। हम लॉन्च करेंगे और फिर पूरा साल COP28 जो UAE में हो रहा है तब तक हम इन मंसूबे को दुनिया भर में जगह जगह जाके वहाँ के हुकूमतें को, वहाँ के प्राइवेट सेक्टर को, ये प्रोग्राम्स, वहाँ के मल्टीलैटरल इदारे को ये प्रोग्राम्स के बारे में बताएंगे, ताकि हम जितना आपको ज़रूरत है, जो कि काफ़ी बड़ा रकम है फाइनेंसिंग का, उसका हम मैनेज करेंगे। ये हर जब वो कहते हैं कि जो आपके ऊपर उतना ये बोझ डाला जाता है जो आप उठा सकते हो, और जबकि एक तरफ ये बहुत बड़ा बोझ लगता है। और जैसे मैंने कहा कि आमद से पहले क़यामत जैसा कुदरती आफत है, मगर मैं जानता हूँ कि हमारे लोगों में उतना रेजिलियंस है कि हमने बहुत मुश्किलात सही हैं, और दादू के अवाम के, यहाँ के अवाम ने हमेशा अपने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। हमने देखा किस तरीके से, चाहे वो MRD का सिलसिला हो, तो किस तरीके से यहाँ के बहादुर और दिलेर अवाम ने ज़िया उल हक जैसे फ़िरौन का मुकाबला किया। हमने देखा कैसे यहाँ के अवाम ने मुशर्रफ का जुल्म कभी नहीं माना और उसका भी डट का मुकाबला किया। हमने देखा कि किस किस्म की कुदरती आफत आते रहें, यहाँ के अवाम का जो स्पिरिट है, जो मोरल है, वो कभी नहीं टूटा। मैंने 2010 का 2011 का असरात देखा, और ये तो उससे तो 10 गुना ज़्यादा है, ये असरात भी देखा है। लेकिन मैं जानता हूँ, मैं यहाँ के अवाम में मैं जानता हूँ कि इनका बर्दाश्त क्या है, इनका ताकत क्या है, इनका बहादुरी क्या है। और इंशाअल्लाह ताला माजी में हमने कभी पीपल्स पार्टी ने यहाँ के अवाम को अकेला नहीं छोड़ा, आज भी नहीं छोड़ेंगे। और मैं अपील करता हूँ यहाँ के नौजवानों का, पूरा मुल्क का नौजवानों का, कि आप आगे आके काम करें, मेहनत करें। इस वक्त हमारा मुल्क मुश्किल में है, अपने इलाके मुश्किल में हैं। आपका साथ की ज़रूरत है कि आप आए, मिलके आप जो भी सोचें पीपल्स पार्टी के बारे में या आपकी हुकूमतें के बारे में। ये वक्त नहीं है कि हम एक दूसरे के, ये वक्त है कि हम मिलके
محنت کرے, مل کے کوشش کرے, اور جب ہم مل کے محنت کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ہم ہر مشکل سے نکل سکتے ہیں. میں جو سارے حکومت کے ادارے ہیں, جو حکومت ادارے چھوڑے, جو لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں, مطلب آپ کے بیوروکریسی کا تو جو ہے شاید امپریشن اور ریپوٹیشن آپ کے ملک بھر میں اتنا خاص نہیں ہوگا, مگر میں نے دیکھا کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے لیول سے لے کے آپ کے ایس پی ڈی سی لیول تک اور کمشنر لیول تک کا آفیسرز ہیں, مہینوں کی بارش, پھر اس کے بعد جو قدرتی آفت کا جو اتنا بڑا سیلاب کا, اور اس کے بعد جو ریلیف کا سلسلہ ہے, اس میں جس طریقے سے ان لوگوں نے محنت کیا, گالیاں کھا کے, دھکے کھا کے, ہمارا ناراضگی وقت کے, جس طریقے سے محنت کیا گیا, وہ پاکستان کا اصل طاقت ہے. کہ آپ لڑکانہ میں ہم نے جو کچرا اٹھانے کا سروس شروع کیا, اس ہمارا سندھ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا جو لوگ ہیں, ان سے لے کے لیڈی ہیلتھ ورکرز سے لے کے مختار کار, اے سی, وہ سارے کے سارے لے کے, وہ دن رات اپنے لوگوں کو مدد کرنے میں لگے ہوئے تھے. ہمارا جو فوج نے بھی آ کے مدد کی, پوری دنیا کا, میں یونائٹڈ نیشنز کا خاص طور کا سیکرٹری جنرل کا شکر گزار ہوں کہ ہمارا دعوت کو قبول کیا. اور اس وقت جب ان کا اپنا جنرل اسمبلی چل رہا تھا اور اس نے پورا دنیا کے قیادت کا میزبانی کرنا تھا, اس نے ہمارا ایک ریکویسٹ پہ سب کچھ چھوڑ کے پاکستان پہنچ کے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے کیا تباہی تھا, اور دنیا بھر تک پھر یہ پیغام پہنچایا. ہم چین کا حکومت کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے فوراً اس مشکل وقت میں ہمارے ساتھ دیا, اور تب بھی بڑے اعلانات کیے, اور آگے جا کے ہمیں ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن میں مدد کر رہے ہیں. میں یونائٹڈ اسٹیٹس کا, امریکہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس وقت ایک پورا ایئر برج کھول دیا تھا, اور ان کا اپنا جو USAID کا ایک آرگنائزیشن ہے, ان کے تھرو اپنا ریلیف ایکٹیویٹی شروع کیا. میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا شکر گزار ہوں, جس کا جو انچارج ہے وہ بی کا ایک زمانے میں جاننے والا تھا. انہوں نے ورلڈ فوڈ پروگرام نے جس طریقے سے اور ابھی تک جس طریقے سے پاکستان کو مدد کر رہے ہیں. ہمارا جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہے, چاہے وہ سعودی عربیہ ہو, چاہے وہ کویت ہو, چاہے وہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہو, UAE کا سفیر بیچارہ نے خود پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچے, اور نہ صرف ان کی حکومت کی طرف سے مگر ان کے عام پبلک کی طرف سے جو مدد ہمیں دیا گیا. ایکسپو سینٹر UAE میں انہوں نے ڈونیشنز کے لیے یہ ان کی بلڈنگز کھولے تھے, اور وہاں اتنا مجمع نے آ کے مدد کیا. بہت سے ممالک ہیں, اگر میں ان کا ایک ایک ذکر کروں تو بہت ٹائم لگے گا, مگر دنیا نے پاکستان کو اس وقت اکیلا نہیں چھوڑا. پوری دنیا نے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے اس مشکل کا سامنا کیا. جو فلاحی ادارے ہیں پاکستان کے اندر, پاکستان کے باہر, انہوں نے جس طریقے سے ہمیں مدد کیا, ہم ان کا بھی شکر گزار ہیں. جو عام پبلک ہے, جو پاکستان کا شہری ہے, جس طریقے سے ہمارا مدد کیا گیا, ہم ان سب کا شکر گزار ہیں. مگر یہ اپیل کرنا چاہیں گے, سمجھانا چاہیں گے کہ ابھی تک سیلاب کا پانی بھی موجود کے علاقے میں ہے, اور ابھی تک سیلاب متاثرین مدد کی ضرورت میں ہیں. ہم وہی جو خاص طور پہ فلاحی ادارے اور ہمارے اپنے لوگ جو مدد کر رہے تھے جب
CNN और BBC पूरा डूबा हुआ दिखा रहा था, लेकिन शायद इस वक्त उनको नज़र नहीं आ रहा है और वो समझ रहे हैं कि ये सैलाब ख़त्म हो चुका है। उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपकी मदद की अभी तक ज़रूरत है। सर्दी का मौसम अब आ रहा है, हमारा ज़रूरियात कुछ मुख्तलिफ है, अभी जो भी मदद किया जा सकता है आज भी वो मदद की ज़रूरत है। आप प्लीज़ उन इलाके से कोऑर्डिनेट करें, हमें ब्लैंकेट्स का भी ज़रूरत है, गर्म कपड़े की भी ज़रूरत है और बाकी जैसे पहले सिलसिला चल रहा था उन चीज़ों का भी ज़रूरत है। वफाकी हुकूमत की तरफ से मैं ख़ास तौर पे जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इदारा है उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिस तरीके से वो पूरा निज़ाम पूरा मुल्क में सैलाब मुतासरीन के लिए खुल चुका था और जिस वज़ीर आज़म ने हिदायत दी कि वो जो आपको रकम मिलता है उसमें इजाफ़ा किया जाए, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आगे जाके भी हमारे सूबाई हुकूमत की कोशिशों के साथ साथ वफाकी हुकूमत भी अपना हिस्सा डाल के और बैनुल-अक़वामी का जो भी हमें सपोर्ट मिलता है उनका साथ मिला के मुसलसल इस पे काम करके हम अपनी मंजिल पे पहुँचेंगे, अपने टारगेट पे पहुँचेंगे और वो खुशहाली और जो हमारे लोगों का मुआशी हालत है उसमें हम बेहतरी देखेंगे। थैंक यू। साबिर साहब भंड साहब, सदर प्रेस क्लब का। जैसे कि आपने फरमाया कि मिलियंस और बिलियंस डॉलर का नुकसान हुआ है, अभी जो 9 तारीख को जनीवा में कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप क्या उम्मीद रखते हैं, कितनी मदद? तो मैं समझता हूँ कि जबकि बिलियंस का नुकसान हुआ है और एक दिन में तो बिलियंस जैसे इकट्ठा नहीं हो, ख़ास तौर पे अगर मैं देखता हूँ कि दुनिया में जो मुआशी मुश्किलात है हर मुल्क के लिए, इसलिए हर मुल्क जो है वो कोविड का मुआशी मुश्किलात का मुकाबला जो है वो खुद कर रहे हैं, फिर साथ साथ यूक्रेन और रूस का जंग हुआ है उसका मुआशी असरात है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जनवरी 9 जो है वो हमारा इब्तिदा है, उस दिन से हम शुरू करेंगे, वो हमारा लॉन्च होगा, मगर लॉन्च करने के बाद ये सिलसिला चलना पड़ेगा, मुसलसल चलना पड़ेगा ताकि हम जितने लोगों मुतासिर हुए हैं उन सब को मदद पहुंचा सके। मगर इसलिए कि इतना टाइम हो चुका है और मज़ीद टाइम बढ़ता जा रहा है, जितना हम इकट्ठे करते हैं, जितना हम मैनेज करते हैं उससे हम काम शुरू करेंगे। साथ साथ हम अपना जो ये प्रोग्राम है जनवरी 9 पे लॉन्च करने के बाद मैं फिर अपना काम जारी रखूँगा, मुख्तलिफ ममालिक में जाऊँगा और वो प्रोग्राम उनके पास ना सिर्फ उनके हुकूमती इदारे मगर जो उनके प्राइवेट इदारे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है, मतलब प्राइवेट इदारे क्या, उनसे जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बैंक्स हैं, उनसे हम बात करेंगे और उस तरीके से हम ये जो हमारा टारगेट होगा उसका हासिल करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है जिस पे सिंध ने, इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन ने सिंध को रेट किया है कि पूरी दुनिया में 5वां नंबर का जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का सिलसिला है वो सूबा सिंध में होता है। आपने वो भारत का, गुजरात का भी आपने उनसे भी बेहतर परफॉर्म किया। उसी मॉडल को भी साथ हम इंशाल्लाह मिलाएंगे ताकि हम हमारा जो पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर है उनको भी हम इनकरेज कर सकते हैं और दुनिया भर में जो प्राइवेट सेक्टर है उनको भी इनकरेज कर सकते हैं कि मसलन अगर हमने मौसमी तब्दीली का मुकाबला करना है तो हमें फिर अपना एनर्जी ट्रांजिशन जो है, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन शुरू करना पड़ेगा। वैसे पाकिस्तान में इतना महंगाई है, बिजली के बिल अगर कोई देखता है तो उनको एक तरफ बिजली आता नहीं है, दूसरे जब जितना आता है उसका बिल जो है वो बर्दाश्त से ज़्यादा है। तो हमारा मंसूबा है, हुकूमत का सोच है कि हम जो सोलर एनर्जी है और जो विंड एनर्जी है जिसका कुदरती तौर पे सूबाए सिंध में हमारे विंड एनर्जी का एक कॉरिडोर भी है और आम तौर पे जब मानसून नहीं है तो सूरज का कोई कमी नहीं है। इस सिलसिले में हम चाहते हैं कि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे के थ्रू हुकूमत जो है वो ज़मीन दे के और ज़मीन हुकूमत का एक वो हिस्सा बनेगा और आगे जो प्राइवेट कंपनीज़ है, जो प्राइवेट सेक्टर है वो आके सोलर
जो जोन्स है वो बनाएंगे, ग्रीन एनर्जी जोन्स जिसमें सोलर भी हो, जिसमें विंड भी हो, और उससे हम चाहते हैं कि हम सस्ता बिजली पैदा हो, और इर्द गिर्द जो इलाके हैं जिनको या महंगा बिजली मिलता है या वो ग्रिड पे है ही नहीं, उनको बिजली ही नहीं मिलता, हम उनको सस्ता बिजली पहुंचा सकें। सो इस तरीके से हमने ना सिर्फ इंटरनेशनल जो आलमी इदारे हैं उनका मदद का उम्मीद रखते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे कोई मंसूबे हैं जो कि फाइनेंशली वायबल भी है, जो हम कमर्शली प्राइवेट सेक्टर के साथ या कमर्शियल बैंक्स के साथ मिलके चला सकते हैं। और अगर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से कोयला निकाल सकते हैं और उससे बिजली बना सकते हैं, तो कोई देयर इज़ नो रीज़न व्हाई हुकूमत सिंध can't go into the green energy sector as well. शिराज डायरी शिराज कौन? आप शिराज हो? कैसे आप शिराज? कौन सा चैनल से ये इदारा से? PTV। अच्छा, आजकल PTV को सवाल दिया जाता है तो जहाँ तक इमरान खान साहब है, ख्वाहिश तो बहुत ज़्यादा रखता है वो, मगर हर मौके पे वो फेल हो चुका है। 2 दफ़ा लॉन्ग मार्च निकाल के ये दावा कर रहा था कि वो अर्ली इलेक्शंस करवाएगा और वो फेल हो चुका। अब उसका जो अभी तक वो बतौर उसका वो ज़िद है वो पूरा नहीं हो रहा है, नज़र आ रहा है कि वो पूरा नहीं होगा। वो इसलिए कि एक तरफ से वो कहता है कि मेरे लोग जो है वो असेंबली को से इस्तीफ़ा देंगे, लेकिन जब वक्त आता है स्पीकर के पास आना तो फिर उसका वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग और परवेज़ खटक गायब हो जाते हैं। वो भी अगर इस्तीफ़ा नहीं देना चाह रहे हैं, वो भी अगर असेंबली नहीं पहुंचते हैं, तो बाकी मैं आपको लिस्ट सुना सकता हूँ उनका बेचारे उधर जो है जो पाव पकड़े हुए हैं स्पीकर साहब का कि हमारा इस्तीफ़ा ना वसूल किया जाए। तो खान साहब अपना सियासत करता रहेगा, लेकिन मेरा ख्याल में कि ये सियासत ना सिर्फ उनका सियासी मुस्तकबिल को नुकसान दे रहा है, लेकिन मुल्क को नुकसान दे रहा है। तो हम घिराव जलाओ का सियासत, नफ़रत की सियासत, तकसीम की सियासत, झूठ की सियासत, वो कौमी को नुकसान पहुंचाते हैं, मुल्कों को नुकसान पहुंचाते हैं। और अगर आपका अना इस हद तक पहुंच जाता है, आपका जिद इस हद तक पहुंचता है कि 1/3 आपका मुल्क डूबा हुआ हो, और उस वक्त भी आपका जिद उन लोगों की जिंदगी से ज्यादा अहमियत रखता हो, तो मैं समझता हूं कि इट डिस्क्वालिफाइज यू फ्रॉम बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। मैं तो समझता हूं कि ये किस्मत है, ये अल्लाह ताला की तरफ से का फैसला था कि हमने इस सैलाब आने से पहले उस नालायक नाअहल वज़ीर आज़म को निकालना था। हमारा खुद खुशकिस्मती है कि हम इस मौके में थे। बस इट हैपन्स ऐसे सिलसिला ऐसे चला कि जब ये सैलाब आया और मैं खुद एक मुतासिर इलाका से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं साथ साथ मुल्क का वज़ीर ख़ारजा, ताकि मैं फिर उन लोगों का सही नुमाइंदगी कर सका। इसने तो जितना वज़ीर आज़म होता भी हमने देखा, जब बीच में 2020 में भी मानसून्स आए थे, एक दफ़ा भी पहुंचा नहीं। मीरपुर ख़ास का हालात क्या है बतौर वज़ीर आज़म। तो इस तौर पे मेरे ख्याल में कि ये अच्छी बात थी। ज़िद का उसका अर्ली इलेक्शंस तो हो नहीं सकते हैं। एडवाइस ये है कि वो आए, पार्लियामान में बैठे, अपना सही किरदार अदा करे। 6 महीने अगर वो वज़ीर आज़म नहीं रहा तो क्या क़यामत हो गया। जहाँ तक MQM की बात है, मैं समझता हूँ कि हमने MQM के साथ मिलके काफ़ी चीज़ें हासिल की हैं। MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहाँ हमारा बहुत से इश्यूज़ और आपस में इख्तलाफात रहे हैं और आगे जाके भी होंगे ज़रूर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे में ये ना ढूंढे कि कौन सी चीज़ें हैं जिस पे हम
एग्री नहीं करते हैं। और हमें हर किसी के साथ, हर पाकिस्तान में जो स्टेक होल्डर है, जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, जो जिनका अपना एक वजूद है, उनसे हम मिल के काम करने की कोशिश करें। ऐसी जगह ढूंढें जहाँ जहाँ हमारा नज़रिया मिलते हो, जहाँ हमारा लाइक माइंडेड व्यूज़ हो, और उस पर काम किया जाए। हमारा एक एग्रीमेंट है MQM के साथ, और हम चाहते हैं कि इस एग्रीमेंट के मुताबिक हम चले, कि हम कानून में जो जितना भी मजबूत हम बना सकते लोकल बॉडीज़ का निज़ाम, हम उतना मजबूत बनाएं। जो उनके दूसरे भी इश्यूज़ हैं, उनके साथ बैठ के उनके बात करने के लिए तैयार हैं। कुछ मेरा पार्टी के लोगों में एक रिजर्वेशन है, एक प्रेशर है कि हमारा जो लोकल बॉडी इलेक्शंस है बहुत से दफ़ा से डिले हो चुका है, और उसकी वजह से सियासी नुकसान का मुझे फिक्र नहीं है। वो इलेक्शंस आप जीतते हो, आप हारते हो, अगर हम हारते तो हारते, जीतते तो जीतते। मसला है कि हमारा जो गवर्नेंस है उस सफ़र कर रहा है। देखिए, जब सैलाब आ रहा था तो लोकल बॉडीज़ का पहला फेज़ तो गुजर चुका था। लोग इलेक्शंस जो जीतना चाह जीत गया, जो हार गया हार चुके, लेकिन वो अपना ओथ नहीं ले सके। और जब वो अपने ओथ नहीं ले सके, अब वो लोगों से वोट तो ले चुके हैं मगर उनका मदद नहीं कर सके। अगर वो सैलाब के दौरान मेरा फेज़ 1 का लोकल बॉडीज़ के लोगों को एटलीस्ट स्वेर इन किया जाता, तो वो पूरा जो फोर्स है, जो फौज है आपके लोकल बॉडीज़ के नुमाइंदे, वो अवाम को मदद कर सकते थे। आज भी हमारे ऊपर उन इलाकों में वो प्रेशर है। बाकी आपके यहाँ वैसे तो मैं जानता हूँ कि लोग निकल के मेहनत तो किया, लेकिन अगर हमारे नुमाइंदे मौजूद होते हैं सैलाब के मुतासरीन को मदद करने, उस वक्त भी हमें काम आता। और आज भी जिस स्केल का जो चैलेंजेस है उनको मदद करने में हमें एक किस्म का गुंजाइश मिलता है। तो हम तो हर चीज़ में, हर मौक़िफ़ पे MQM के साथ, दूसरी जमातों के साथ मिल के चलने के लिए तैयार हैं। ये जो ताहिया डिले है हमारा इलेक्शंस के, इस पे हमारे कुछ एतराज़ात हैं जिस पे हम बातचीत करते रहेंगे। शुएब थे दुनिया में तहीम। मेरा एक सवाल है, 2010 में सैलाब ने बहुत बड़ी तबाही मचा थी, उसके बाद हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए थी सुपरियो बंद और MNV ट्रेन की कुश्तें मजबूत करने के लिए। तो अभी 2022 में सबसे ज़्यादा मुतासर ज़िला दादू हुआ। तो अभी आइंदा जो सैलाब से निमटने के लिए हुकूमत इस तरफ क्या तवज्जो देगी? तो एक तो मैं समझता हूँ तवज्जो तो हमेशा देना चाहिए, वो तो अपनी जगह सही है। लेकिन 2010 के सैलाब के बाद जितना हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट के लिए काम किया, वो भी एक हकीकत है। मैं आपकी बंद पे बात नहीं कर सकता ना कमेंट कर, लेकिन FP बंद जो है, वो FP बंद जो मेरे यहाँ के नज़दीक है, उसको वो ब्रीच हो चुका था 2010 के फ्लड्स के बाद। और हमने फिर आलमी इदारे के साथ मिलके, अपने नहीं कि आप कहें कि 2 नंबर काम हुआ, आलमी इदारे के साथ मिलके, उनसे, उनके एक्सपर्ट्स से, उनका इनपुट से वो FP बंद को हमने उस 2010 के फ्लड या 2011 के फ्लड्स के जो स्टैंडर्ड्स थे उससे बहुत ऊंचा और बहुत और ताकतवर बनाया था। लेकिन उस वक्त के एक्सपर्ट्स भी ने हमें ये नहीं बताया कि 10 साल बाद इस लेवल पे, जहां 1/3 आपका जो सरजमीन है वो पानी से मुतासर होगा। और ये सिर्फ हमारे इलाके में नहीं, इसलिए पूरा पाकिस्तान के लिए हमने रिकन्स्ट्रक्शन का सिलसिला शुरू किया था। हमने पख्तूनख्वा में जो स्वात में ब्रिजेस 15 फीट ऊपर बनाए, और उस लेवल से जहाँ से 2010 और 11 का पानी निकल रहा था, उससे ज़्यादा ऊपर उन्होंने ये ब्रिजेस बनाए थे। लेकिन ये सैलाब ने उस ब्रिज को भी लेके बह गया। जो ब्रिटिश के टाइम से, बलोचिस्तान में जो ब्रिटिशर्स के टाइम से इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जो 100 साल तक मानसून और सैलाब भुगत के वहीं थे, इस सैलाब में वो गिर चुके। हमारा अपना घर जो नौदेरों में है, पता नहीं कितना 100 साल 200 साल पुराना होगा, कितने मानसून्स देख चुके होंगे, इस सैलाब में वो गिर चुका। तो एक तो हमें यह अंदाज़ा होना चाहिए कि कितना फ़र्क है इन दी
sheer quantity of water and flooding. जो हमारा रिकन्स्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन है, ऑब्वियसली हम ये नए हकायक को सामने रखेंगे और हम खुद अपना एक्सपर्टीज़ नहीं, हम पूरी दुनिया का एक्सपर्टीज़ लेंगे कि हम कितना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, ताकि हम इन चीज़ों का मुकाबला कर सकें. लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं था कि कुछ कमज़ोरियां हैं. वो तो था, हमें पता है कि हमारा LBOD में और RBOD में क्या क्या मसले हैं, और हमने चाहा भी कि हमें वो वसाइल दिया जाए ताकि हम ये इश्यूज़ को एड्रेस कर सकें. आप अगर उठाए मेरा 2020 का, जब मैं निकला था सैलाब का, ये जो उस वक्त का 2020 था या 2020 में जो मानसून हुआ था, तो उसमें भी जब हम निकले वसाइल कम थे, तो हमारा मुतालबा था कि हमें एटलीस्ट अपना हक दिया जाए. कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं, कोई इजाफा नहीं किया जाए, लेकिन हमारा पूरा शेयर दिया जाए NFC का. हमारा पूरा शेयर, जो हमारा अपना पैसा भारिया टाउन केस में सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, जो कि टैक्सेस का केस में सिंध हुकूमत का कुछ पैसा किसी और कोर्ट में मौजूद है, उसी पैसा को हमें एक्सेस दो ताकि हम RBOD और LBOD का जो इश्यूज़ है उन पे काम कर सकें. हमें वफाकी हुकूमत और इन सारे इदारे से 2020 में जवाब मिला. अगर वो काम हम उस वक्त शुरू करते तो शायद थोड़ा फ़र्क होता, मगर इस लेवल का ऑब्वियसली हम तब भी नहीं संभाल सकते. आज भी हम वही मुतालबा दोहराते हैं कि हम ये पूरा इंटरनेशनल मेहनत तो करेंगे, लेकिन दुनिया देख रहा है कि आप अपना वसाइल में से कितना वसाइल रख रहे हो, और जहां हमारा पैसा, आपका पैसा, सिंध के अवाम का पैसा आज भी मौजूद है, वो इंटरेस्ट इकट्ठा किया जा रहा है किसी जुडिशरी का अकाउंट में या किसी और अकाउंट में, वो तो पैसा हमें इस काम के लिए दे दे. बिकॉज द लेवल एंड द स्केल ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हमने सही करना है, उसके लिए हमें बहुत वसाइल की ज़रूरत होगा. नो डाउट ऑफ आपकी बात, मोस्ट एक्टिव फॉरेन मिनिस्टर. अच्छा, अगर इतना बड़ा फ्लड आया सिंध, तकरीबन बड़ा इफेक्ट हुआ सैलाब से, फिर जो बाहर के ममालिक हैं उस हवाले से आप आइंदा चंद रोज़ में आपने बोला कि बहुत सारी चीज़ों की जरूरत है, उस हवाले से आपने किन किन ममालिक से अब तक रब्ता किया, और दूसरा सवाल मेरा ये कि मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है वो ठीक नज़र नहीं आ रही. एक जानिब दहशतगर्द फिर से सर उठाने लगे हैं, और दूसरी जानिब मुल्क में जो एक सियासी अदम इस्तेकाम है, तो सियासी जमातें हैं उनकी आपस में इतनी क्रेजेस बढ़ गए हैं कि मुल्क को ऊपर से कुछ डाल दिया है. तो इस सवाल से आप क्या कहेंगे, जो मतलब कि जो किसी पार्टी के चेयरमैन या रहनुमा आगे नहीं आने चाह रहे, क्या आप उनको सवाल से कोई बातचीत के लिए ऑन बोर्ड लेंगे कि नहीं लेंगे? तो अब जहाँ तक वज़ीर ख़ारजा की बात है, और तो जब से एज इन मतलब मैंने पहले दिन तो अपने बाहर के दौरे रुकवाए थे कि मैं जाए और सैलाब से मुतासरीन से मिलूँ, मदद करूँ, लेकिन जैसे मैं पहुँचा लड़काना और इल्कित के इलाक़ों को, मुझे तो फ़ौरन अंदाज़ा हुआ कि ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक इवेंट था. ये जैसे मैं कहता हूँ क़यामत से पहले क़यामत था. तो तब से फिर मैं रुका नहीं हूँ, तब से मैं मुसलसल भाग दौड़ कर रहा हूँ दुनिया भर में, और वो इसलिए कि लोग का यादाश्त तो थोड़ा सा कमज़ोर होता है, और 3-4 दिन के लिए आपका BBC पे और CNN पे वो दिखा रहे थे कि पाकिस्तान डूबा हुआ, फिर दूसरे क्राइसिस हो जाते, टेंशन चला जाता है. तो मेरा पूरा मेहनत यही रहा है कि मैं दुनिया भर में जहाँ यूक्रेन का और रूस का जंग चल रहा है और उसकी वजह से मुआशी मुश्किलात दुनिया भर में है. आई मीन, आप सोचिए जर्मनी जैसा मुल्क में लोड शेडिंग हो रहा है. तो एक बहुत मुश्किल वक्त मुआशी तौर पे उनके लिए भी, चीन के लिए जो कोविड का इम्प्लिकेशंस है उसके बाद जो मुआशी हालात है वहाँ भी वो अपना बेल्ट टाइटनिंग कर रहे हैं. तो इस मुश्किल मुआशी हालात में मैं मुसलसल जगह जगह जाके सैलाब मुतासरीन की जो मसला हैं वो एक बार फिर उनको याद दिलवाता है, मदद लेने की कोशिश करता हूँ. फाइनेंस करने का जो तरीका है वो हम उस सिलसिला में हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि ये सिलसिला जैसे मैंने कहा टाइम लगेगा. जनवरी 9 पे हम अपना जो इब्तिदा करेंगे, लॉन्च करेंगे, और उसके बाद मज़ीद काम करना पड़ेगा. जहाँ तक दहशतगर्दी की बात है, ऑल आई कैन से इज़ आई टोल्ड यू सो. मतलब आप मुझे एक दफ़ा बताए, जब ये इडियोटिक सिलसिला चल रहा था, जब मुल्क अपना खुद नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़
फैसले लिया जा रहा था तो मैं उस वक्त भी कह रहा था कि ये दिस इज रिडिकुलस। कौन सा मुल्क ये करता है? आप मुझे पूरी दुनिया में एग्जाम्पल दिखाएं कि जो दहशतगर्द है, जो आपने कहा ब्लैकर देन ब्लैक दहशतगर्द, जिनको आपने शिकस्त दिलवाया हुआ, जो मुल्क वो काम अपने सरजमीन में कर दिखाया जो पूरे नेटो और पूरी दुनिया मिला के अफगानिस्तान में नहीं कर सका। हमने पाकिस्तान से दहशतगर्दों को पाक कर दिया था, हमने स्वात को खाली किया, नॉर्थ वजीरिस्तान को खाली किया। कराची में जिस तरीके से ऑपरेशंस हुआ, अब तब का जो दहशतगर्दी के हालात थे और आज से भी जहां क्राइम में मसले हैं, लेकिन आज से भी कंपेयर करें तो बेहतर है। बलोचिस्तान में कितने ऑपरेशंस हुए हैं, हमने साथ साथ NFC अवार्ड दिलवाया, जो फॉल्ट लाइन्स थे, लोगों को वसाइल, लोगों को हक दिलवाए ताकि वो दूर हो जाए इस किस्म की इंतहा पसंदी से। हमारा सिपाहियों ने कुर्बानियाँ दी, हमारे पुलिस ने कुर्बानियाँ दी, हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ने, क़यादत ने जान की कुर्बानी दी इन सारे यही क़ुव्वतों को मुकाबला करने के लिए। आपके बच्चों ने, APS के बच्चों ने कुर्बानियाँ दी और आप जीत चुके। उनका कुर्बानियों की वजह से, अपने ऑफिसर्स का, अपना फौज का, अपना पुलिस का, अपने लोगों का बहादुरी की वजह से आप जीत चुके थे ना। जीतने के बाद कौन ऐसे फैसले करते हैं कि हमें उस पोजीशन में लाया जाए जैसे महसूस हो कि हम जंग हार चुके। आप जीत चुके थे और फिर आपने जीतने के बाद ये फैसला किया कि जो लोग APS में मुलविस थे, ये दूसरे दहशतगर्द थे, हमारे कैदी, उनको हम किसी से पूछे बगैर आज़ाद करेंगे। जब हमने देखा कि काबुल में जो सब कुछ हुआ, और TTA एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनका अपना तारीख है, अपना मुल्क में एक तारीख है उनका, आप पसंद करें या ना करें। तरीके तालिबान अफगानिस्तान एक हकीकत है, तरीके तालिबान पाकिस्तान एक फितना है जिसका हमने मुकाबला करके शिकस्त उसका करवा दिया था। और जो उनका कैदी इधर थे वो भी रहा, जो उनका कैदी अफगानिस्तान में थे वो वहां से रहा हुआ, तो आपने कहा आए इधर पाकिस्तान में रहे, हम आपका मेजबानी करेंगे। कल परसों इमरान TV पे आके बयान देता है कि मैंने 50,000 इस किस्म के तालिब को लाके पाकिस्तान में बसाना। तो हमें इंपोर्टेड जो कहता है वो खुद दहशतगर्दी को इंपोर्ट कर रहा था। ये मैं समझता हूं इसके सबसे बड़ा जुर्म है कि आपने एक जीता हुआ जंग को हमें इस तरीके से खेल दिया। KP में फिर इन्होंने इस इशू को ऐसे दबाया ताकि बाकी को पता ना चले कि उनके नाक के नीचे तालिबान इनसे स्पेस ले रहे हैं, पैरेलल हुकूमत का ऐलान कर रहा है, उनके लोग PTI के नुमाइंदे तालिबान को भट्टा दे रहे हैं, मतलब वो पैसा दिलवा रहे हैं उनको। किस मुंह से वो बाकियों को लेक्चर दे सकते? उसको पहले जाके APS के बच्चों को पाँव पकड़ के माफी मांगना चाहिए कि कैसे इसने ये फैसला लिया। इसने हमारा शोदा का जो खून है उस पे कैसे सौदा किया कि आज पाकिस्तान उस सूरत हाल में है कि एक बार फिर दहशतगर्दी अपना सर उठा रहा है। हमने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये तय कर चुके हैं कि जो भी ये एक्सपेरिमेंट था, इमरान का अपीजमेंट का पॉलिसी था, वो हम नहीं मानते हैं। हम पाकिस्तान में पाकिस्तान का आइन का रिट कायम करेंगे। जो दहशतगर्द है, जो दहशतगर्दी कर रहा है, करना चाहते हैं, उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। जो पुरअमन लोग हैं, जो पाकिस्तान को आइन मानते हैं, जो इधर अमन के तौर पे जीना चाहते हैं, कोई जुराइम में मुलविस नहीं है, वो तो 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन दहशतगर्दों को ना मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, ना हुकूमत माफ़ करने के लिए तैयार है, और ना इस मुल्क के अवाम माफ़ करने के लिए तैयार है। तीसरी बात जो आपने कहा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का, इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आया? जब था आपका थोड़े पीरियड के लिए, वो 2007 से लेके 2018 तक का दौर था। बाकी 1947 से लेके तब तक और 2018 के बाद आपके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहा। वो इसलिए कि हमने फैसला किया कि ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है, हमने सब इसी मुल्क में रह के इस मुल्क को चलाना है। एक आइन है, इदारे हैं जैसे पार्लियामान है, जुडिशरी है, दूसरे हैं, और आज के बाद जो है हम एक दूसरे को
ذاتی دشمن نہیں، سیاسی مخالف سمجھیں گے. جہاں ہمارا نظریہ ملتا نہیں ہے وہاں ہم پالیسی پہ اختلاف کریں گے، جہاں ہم مل کے کام کر سکتے ہیں ہم کام کروائیں گے. اور اس طریقے سے جو خان صاحب مکمکا کہتا تھا اس کو ریکنسیلیشن کو، اس طریقے سے ہم پاکستان کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے ہم نے نکالا تھا. ہم نے آئین کو قائد عوام کا 1973 کا شکل واپس دلوایا 18ویں ترمیم کی صورت میں. ہم نے صوبوں کو ان کا حق دلوایا. ہم نے کسی ایک سیاسی قیدی کو نہیں رکھا. میڈیا کو آزادی دلوایا اور پتہ نہیں کیا کیا کام کیے اس لیے کر سکے. سی پیک صدر زرداری نے مینیج کیا، لے کر آیا، شروع کیا، بنیاد رکھا، مگر اس لیے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی تھا اور ایک دوسرے کی دشمنی نہیں کر رہے تھے تو اسی پروگرام کو میاں صاحب نے آگے لے کے چلا. تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس لیے ہے کہ عمران خان کو سپورٹ کیا گیا غیر آئینی طریقے سے اور ایک سیاستدان نہیں پالے گیا، ایک فیشسٹ آدمی کو سپورٹ کیا گیا. پورا ملک میں آرٹیفیشلی اس کو پہ مسلط کیا گیا اور وہ اپنے انا اور اپنے ضد سے آگے نہیں دیکھ سکتے. تو میرا خیال میں نے نشاندہی کی ہے کہ اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہتے ہیں یا وہ آ کے پارلیمان میں بیٹھ کے سیاستدان بنے، جمہوری سیاستدان بنے اور ایسے اس نظام کے تحت چلے، یا نہیں تو علاج بھی ہے ہمارے پاس، وہ بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. نظام الدین شیخ نظام الدین شیخ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ مہنگائی ہے. بالکل صحیح. آپ نے احتجاج کیا، پی ٹی آئی کو علیحدہ کروا دیا، اس کے بعد بھی جو ہے نا مہنگائی اور بھی بڑھی. بالکل صحیح. تو یہ مسائل آپ کیسے حل کریں؟ تو ایک تو ہم نے جب جدوجہد کیا اس سلیکٹڈ حکومت کے خلاف تو کچھ بنیادی چیزیں تھے جس کی وجہ سے ہم یہ احتجاج کر رہے تھے. ایک جو ہمارا جمہوریت کو، ہمارا آزادی کو، ہمارا پارلیمانی نظام کو، ہمارا صوبائی خود مختاری کو، ہمارا جو NFC ایوارڈ ہے ان سب کے آئلینڈز کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے. تو جو ہمارا حق پہ ڈاکے مارے جا رہے تھے اس کا ہم نے تو صلح کرنا تھا، صحیح کرنا تھا، اور ساتھ ساتھ تو معاشی بحران تھا. اور ہم جس معاشی بحران کے خلاف احتجاج کر رہے تھے وہ عمران کا پیدا کیا گیا معاشی بحران تھا. مسئلہ صرف تب آیا جب عمران کو، اور اگین یہ ایسے ایک قدم تھا جو ہمارے سوچ سے باہر ہے کہ کیسے ایک وزیر اعظم یہ قدم اٹھا سکتا ہے، کہ نکلنے سے پہلے عمران نے اپنا کیا گیا جو وعدے تھے عالمی ادارے کے ساتھ وہ توڑوائے، پاکستان کو دیوالیہ بنا دیا، ڈیفالٹ کے خطرے میں دھکیل دیا. اور ایسے صورتحال ہم نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا جو معاشی طور پہ اس مشکل میں تھے. تو شکر الحمدللہ وزیر اعظم اور وزیر اعظم کا فائنینشل ٹیم نے ہمیں اس مشکل سے بچا دیا، مگر اس قدم کی جو بوجھ ہے، اس جو فیصلہ ہے، اس کا جو بوجھ ہے وہ ہمارا عام آدمی کو اٹھانا پڑا اور اٹھانا پڑ رہا ہے. مہنگائی کی صورت میں، کھانے پینے کے اشیاء کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں. اور پھر اس کے بعد جب آپ نے بچا دیا اور امید یہ تھا کہ ہمارا جو چولہا وہ پھر سے چلے گا اور پاکستان کی معیشت ایک صحیح سمت پہ چلے گا، اوپر سے یہ قدرتی آفت جہاں 1/3 آپ کا سرزمین جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا. تو اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ معاشی بحران ہے، مگر یہ سوچنا پڑے گا کہ اس معاشی بحران سے نکلنے کے لیے ہم کس پہ اعتماد کرتے ہیں. اگر میں اپنے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت، اس موقع پہ، اس مورچے پہ آپ کیا سمجھتے ہو، یہ جو وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعظم صاحب کی فائنینشل ٹیم یہ مشکلات سنبھال سکتے ہیں، یا وہ آدمی جس نے یہ معاشی بحران پیدا کیا، جس نے یہ نقصان کیا؟ تو میرا خیال میں سب کہیں گے کہ ہم عمران خان کا جو 4 سال کا گند ہے وہ چند مہینوں میں تو وزیر خزانہ صحیح نہیں کر سکے گا. اس کو تھوڑا سا ہمیں موقع بھی دینا چاہیے کہ وہ ہمیں ان معاشی مشکلات سے نکال سکے. ہم ضرور اپنے تجویز دے سکتے ہیں، اپنا رائے دے سکتے ہیں، جو کہ ہم مسلسل دیتے رہتے ہیں. اور اس وقت بھی ہم سمجھتے ہیں کہ 2 اہم چیزیں ہیں. ایک جو یہ سیلاب آیا ہے اس کو ایک کیٹاسٹرفی سے ایک موقع میں تبدیل کیا جائے، اور سیلاب متاثر علاقے جو گلگت بلتستان، جنوبی پنجاب، جنوبی پختونخوا، سندھ
और बलूचिस्तान में मज़ीद इन्वेस्ट किया जाए, एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया जाए, ताकि हम उन लोगों को भी निकाल सकें मुश्किल से और हमारा मईशत को फ़ायदा दे सके। और दूसरा, पाकिस्तान का मईशत का बैकबोन हम सब सुनते आ रहे हैं कि ज़राअत है। बहुत अफसोस की बात है कि जब पीपल्स पार्टी ने हुकूमत छोड़ा तो हम दुनिया को पाकिस्तान का जो चीज़ें थे वो बेचते थे। हम पाकिस्तान का गंदम, पाकिस्तान का चीनी, पाकिस्तान का जो पैदा किए गए चीज़ें थे हम पूरी दुनिया भर में बेचते थे, और इस वक्त हम वो सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। हमारा राय है अगर हम ये यूक्रेन और रूस के फार्मर्स को डॉलर्स में पे करने के बजाय हम उसी पैसा रुपीस में अपना फार्मर्स पे इन्वेस्ट करते तो हम एक बार फिर ज़राअत को भी मजबूत कर सकते हैं, हमारा जो किसान हैं उनको मदद कर सकते हैं, एक्सपोर्ट्स में इजाफा कर सकते हैं और पाकिस्तान की मीशत को सही सिमत पे लेके जा सकते हैं। और हमारा जो NSC मीटिंग हुआ कल, उसमें मीशत भी एजेंडा पे था और उस मीटिंग के कंक्लूजन में इस बात को डॉक्यूमेंट में शामिल किया गया कि ज़राअत पे हम फोकस करेंगे। और अगर मुझे देखना है और इलाके जो मुतासिर हुए हैं, घर जो टूटे हैं, आपके सवाल जवाब तो हर किसी टाइम पे केटी हैं। अच्छा ज़रूर। कैसे आप भाई, खैरियत से हो? दुआ करता हूँ पहले तो हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करे, मगर ये अफवाहें सुन रहे हैं कि डिफॉल्ट में जा रहा है पाकिस्तान। पहला तो यही बात, उसका जिम्मेदार कौन है, सियासी कशमकश है, क्या है? और दूसरा ये कि ये सैलाब जो आया, अरबों खरबों का नुकसान तो हुआ है, ठीक है, मगर इसमें मुखालफिन ये भी उंगलियां उठा रहे हैं कि सैलाब मिसमैनेजमेंट का भी है। आप क्या कहें? पहले जहाँ तक मैं कहूँगा कि मुआशी बहरान ज़रूर है। इस वक्त हम डिफ़ॉल्ट के ख़तरे में नहीं है। ज़िम्मेदार तो वही शख्स है जिसने अपने हाथों से हमारा मईशत का गला घोटा, जिसने खुद वो फैसले लिए अपने कुर्सी को बचाने के लिए, जिससे पाकिस्तान का क्रेडिबिलिटी आलमी इदारे में भी उसको नुकसान पहुंचाया और हम वाकई डिफ़ॉल्ट की तरफ हमें धकेला गया। तो इस वक्त हम मुआशी बहरान में हैं। जहाँ तक सियासी मुखालिफिन हैं, मैं उनका क्या कहूँ, एक तरफ यूनाइटेड नेशंस है, एक तरफ एंटोनियो गुटेरेस है, एक तरफ COP27 का शर्म शेख में पूरी दुनिया का क्लाइमेट एक्सपर्ट्स है और दुनिया के साइंसदान है। यहाँ आपके सामने सैटेलाइट इमेजेस है जो ऊपर से दिखा रहा है कि 2/3 ऑफ सिंध एक झील बन चुका, एक समंदर बन चुका था। तो इन लोगों के में वो अक्ल ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि अच्छी बात है कि वो हुकूमत में नहीं थे, इसलिए फिर उनके समझ से बाहर होता कि इस सैलाब को कैसे मैनेज या मिसमैनेज किया जाता। इस बड़ा जो एक तिहाई पाकिस्तान का सर ज़मीन पानी में डूबा हुआ हो, उसका मैनेजमेंट का सवाल नहीं होता। उसका ये होता है कि उस मुश्किल में आप कितने लोगों को मदद कर सकते हैं। महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। चीफ मिनिस्टर सिंध में CM हाउस में था 2 दिन पहले, तो वो हमें बता रहा था कि जो स्टेटिस्टिक्स है कि 2005 में जब भी वो बारिश आया था कितने लोग मर चुके और उस वक्त का कितना कंपैरेटिवली कितना बारिश था और इस वक्त कितना था। और तो साइंस जो है, हकाइक जो है, पूरी दुनिया जो है वो ये बात मानती है कि ये मौसमी तब्दीली की वजह से तबाही हैं। इसमें पाकिस्तान के अवाम का कोई कसूर है कि मौसमी तब्दीली के हवाले से हमारा 0.8% कंट्रीब्यूशन है, मगर पूरी दुनिया में द 8th मोस्ट डेवस्टेटेड कंट्री बाय क्लाइमेट चेंज। यहाँ का कोई नाम नेहाद सियासी जमात इस किस्म के झूठे इल्ज़ाम लगाए तो उस पर मैं समझता हूँ। बेटे हैं वो पब्लिक का ये सवाल है कि हमारे बिलावल भुट्टो साहब कब दूल्हा बनेंगे और कब जब हम उनको बचाएंगे।